Hello, my dear champions. My name is Naveen Kumar. I am here to welcome you again on our YouTube channel. I hope you celebrated your Diwali very well. Now, this is time to back again to studies because your board exams are coming near. So, now as you all know that we have completed our exercise 11.1. There are two examples which are remaining. So, in the last part, we are going to cover the examples. And after that, we will start our chapter 13, which is very most important according to the examination and very easy. So we are going to start our video. As you all know that before starting our video, first of all, we have to read our question very carefully. So listen, what we have given in this question, we have given that find the area of the sector, means we have to find out the area of the sector, and we are not aware about that which sector we have right now. Okay, तो उसके लिए अपने को क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा. So with radius 4 centimeter and angle of angle 30 degree, and the angle is 30 degree, and I told you many times that whenever the angle is less than 180 degree, कि एंगल 180 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, तो आपको किसका एरिया निकालना है? माइनर का. किसका? माइनर का. एंड इट इज आस्किंग अबाउट द सेक्टर. इट मींस वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर. समझ में आया तक? ओके, नेक्स्ट. Also find the area of the corresponding major sector, means we have to find out the area of minor sector and major sector, means आपको दोनों ही सेक्टर का क्या निकालना है? एरिया निकालना है. ओके, सो as you all know that sectors are related to the circle, so before that we have to draw a circle. तो आपको पता है कि सेक्टर जो किससे रिलेटेड है? सर्कल से. सो आपको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? आपको ड्रॉ करना पड़ेगा एक सर्कल. सो दिस इज द सर्कल दैट वी हैव. ओके, एंड आई एम चेंजिंग इट्स कलर. So done. So we have to find out the area of the sector. What we have given in this question? We have given. So this is the example 1. Example 1. So what we have given? Given that we have given its radius. क्या given आपके पास? Radius. It means the radius that we have in this question, which is 4 centimeter, and next that we have given which is its angle, and the angle is 30 degrees, so I am writing here angle. And as you all know that angle is represented by theta, so we are writing theta 30 degree. And we have to find out the area of the sector. Sector क्या है? Sector is made up by the two radius and length of arc. की दो radius और length of arc को include करने से क्या बनता है? Sector बनता है. तो देखते हैं आपके पास जो sector है वो कैसा है. So this is the center of the circle. ये इसकी रेडियस. दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल. दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल, एंड ये भी इसकी क्या होगी? रेडियस. एंड एंगल बिटवीन द रेडियस इज 30 डिग्री. की जो दोनों आपके पास रेडियस है उनके बीच में एंगल कितना है? 30 डिग्री. दिस इज द रेडियस विच इज 4 सेंटीमीटर. दिस इज द रेडियस विच इज 4 सेंटीमीटर, एंड दिस इज द लेंथ ऑफ आर्क. दिस इज द लेंथ ऑफ आर्क. सो आपको जो निकालना है वो क्या निकालना है? एरिया ऑफ सेक्टर. एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का जो निकालना है वो एरिया निकालना, चाहे माइनर और मेजर हो, दोनों ही आपको निकालना है. सो आपको दिख रहा होगा कि ये जो सेक्टर है ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, और जो कंप्लीट एंगल बनता है वो कितने डिग्री का होता है? सर्कल के सेंटर पर. सर्कल के सेंटर पर जो कंप्लीट एंगल बनता है वो कितने डिग्री का? 360 का. तो ये नीचे तो कितना आ गया? 30. इट मींस ऊपर कितना एंगल बच गया? मैंने आपको बताया भी था कि अगर यहाँ पर 10 है तो ऊपर वाला 360 माइनस 10, अगर यहाँ 20 है तो बच्चे वाला 360 माइनस 20, और यहाँ पर 30 है तो ऊपर वाला 360 माइनस 30, और इन इजीली वी कैन से 330 डिग्री. ये इसका क्या हो गया? एरिया. सॉरी, ये इसका क्या हो गया? एंगल. तो आपको एक तो इस वाले क्या निकालना है? एरिया निकालना है. इस वाले सेक्टर का क्या निकालना है? एरिया. और वो जो बचा हुआ पोर्शन आपके पास है उसका भी आपको क्या निकालना है? एरिया. एक तो ये वाले पोर्शन जो है इसे बोलते हैं माइनर. क्यों? क्योंकि एंगल कितने डिग्री से छोटा है? 180 डिग्री से. और जब भी एंगल 180 डिग्री से छोटा होगा तो क्या बनेगा? माइनर. और जो बच गया वो मेजर. ओके, कम टू द पॉइंट. सो दिस इज द माइनर सेक्टर. सो वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ अ माइनर सेक्टर. सो आई एम राइटिंग हियर दैट व्हाट वी हैव फाइंड आउट. सो वी हैव टू फाइंड आउट एरिया ऑफ माइनर. एरिया ऑफ माइनर एंड मेजर सेक्टर. कि आपको जो है वो माइनर और मेजर सेक्टर का क्या निकालना है? एरिया निकालना है. ठीक है, मेजर सेक्टर. सो द वेरी फर्स्ट वी आर गोइंग विद द सॉल्यूशन. एरिया ऑफ माइनर सेक्टर. एरिया ऑफ माइनर सेक्टर. ठीक है. सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ दिस सेक्टर? I told you that area of the sector is pi r square theta upon 360 degree.
Yes or no? What is the value of pi that we have to consider here? On the place of pi, we have to write 3.14. So I am writing here 3.14 into. On the place of radius, the radius is 4 centimeter. So radius have two powers. It means आपको जो radius है वो कितनी बार लिखनी है? 2 times 4 into 4. And angle कितना है? 30 degree. So 30 upon 360. So 0 से 0 क्या हो गया? Cancel out. And the remaining part is 4 1 जा 4. ठीक है? 4 9 जा 36. Is there doubt? No. 3 1 जा 3. 3 3 जा 9. कोई डाउट नहीं है. नेक्स्ट, अब आपने बोला सर इन दोनों को क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई. और उसको किससे डिवाइड कर दीजिए? 3 से. तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए. 4 4 जा 16. कैरी क्या लग गई? 1. 4 1 जा 4 और 1 कैरी 5 इंटू 4 3 जा 12 है. सो ये आपके पास आ गया और अपॉन में क्या है? 3. मीन्स अब आप इसको क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए. सो 3 4 जा 12. 3 4 जा 12 पॉइंट. इट मीन्स डेसिमल. 5 3 1 जा 3. 5 में से 3 गया, क्या बच गया? 2. और 2 के आगे 6 है. मीन्स 3 8 जा 24. 26 है ना, तो 3 8 जा 24. सो 4.18. और इसके आगे जो यूनिट है वो है सेंटीमीटर. और आपको बताया हुआ है कि जो एरिया उसकी यूनिट किसमें होती है? स्क्वायर में. सो वी हैव टू राइट सेंटीमीटर स्क्वायर. इसके आगे भी वैल्यू चलती जाएगी, बट अपने को जो है डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट तक रखना है. किसी का डाउट आ रहा होगा कि सर बुक में तो 4.19 दे रखा है, वो अप्रोक्स वैल्यू. मींस अब आप इसके आगे जाते जाओगे तो वो आपके पास जो वैल्यू वो बहुत बड़ी हो जाएगी. तो आप क्या करना, 2 डिजिट तक आप निकाल लेना, उसके बाद आपका आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, अप्रोक्स भी लगा हुआ होगा उसका आगे, तो अपना आंसर आ गया. सो नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर. अब आपको जो है वो एरिया जो निकालना है वो किसका भी निकालना है? मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है. सो आई एम राइटिंग हियर इन द सेकंड पार्ट area of major sector. area of major sector. आपने बोला सर मेजर सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ बताओ मुझे क्या होता है? आपने बोला सर फॉर्मूला तो मेरे को याद है. मैंने बोला बोलो, तो आपने बोला सर पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा. 360 माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री. बोला सर ये लिखना जरूरी है क्या? मैं डायरेक्ट जो है वो थीटा की जगह 330 नहीं लिख सकता क्या? लिख सकते थे. अब आपको जो है यहाँ पर थीटा क्या था? आपके पास जो एंगल था वो 30 था, तो 360 माइनस 30 भी क्या आएगा? 330 ही आएगा, है ना. तो नॉट अ बिग प्रॉब्लम. तो आपने बोला सर पाई की जगह क्या कंसीडर करना है? 3.14. ऑन द प्लेस ऑफ रेडियस यू हैव टू राइट 4. और रेडियस पे पावर क्या है? 2. इट मींस यू हैव टू राइट रेडियस 2 टाइम्स, है ना. सो 4 into 4 मल्टीप्लाई 360 माइनस 30 अपॉन 360. आपने बोला सर 3.14 into 4 into 4 360 माइनस 30 330. सो 330 अपॉन 360. सो देखो 0 से 0 क्या हो गया? कैंसिल आउट. कोई दिक्कत है? नहीं. सो देखो यहां से आप देखोगे 4 1 जा 4 4 9 जा 36. कोई दिक्कत है? नहीं. 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3 3 1 जा 3. कोई दिक्कत है? नहीं है. सो आपने बोला सर 3.14 को किससे मल्टीप्लाई करो? 4 से. तो क्या आएगा? 12.56. तो आपने बोला सर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो है वो आएगा 12.56. और आपके पास बच गया क्या? उसके बाद आपके पास 11 और है. इट मींस आपको 11 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. यस और नो? ओके. तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए. 12.56 को मल्टीप्लाई कीजिए आप 11 से. सो आपके पास आ गया 1256 पॉइंट. तो 6 और 5 11, है ना. और उसके बाद 8 3 और ये, तो क्या आ गया? 138.16. क्या आ गया? 138.16. तो आपने बोला सर 138.16 और नीचे क्या आ गया? 3. यस और नो? कोई डाउट है? नो. सो नेक्स्ट देखो 3 4 जा 12 है और आपने 13 को 3 से डिवाइड किया गया. 3 4 जा 12 है. 13 में से 12 हो गया 1 और 1 के क्या आगे 8. तो 3 6 जा 18 पॉइंट. फिर आगे आपके पास है 16. तो 16 में से ये डायरेक्ट डिवाइड नहीं होगा, तो आपने बोला सर 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस
एरिया ऑफ मेजर सेक्टर की अगर आप इसको इस 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर ऑफ द मेजर सेक्टर। यही आपका क्या है मेजर सेक्टर का एरिया। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वी हैव गिवन फाइंड द एरिया ऑफ दिस सेगमेंट। मींस आपको जो एरिया निकालना है वो किसका निकालना है, सेगमेंट का। सर सेगमेंट है क्या, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा। आई टोल्ड यू दैट सेगमेंट इज मेड अप बाय द कोड एंड लेंथ ऑफ आर्क। की कोड मींस एक लाइन सेगमेंट व्हिच जॉइंस टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। की सर्कल की सर्कमफ्रेंस, सर्कल की बाउंड्री, उस पर 2 पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करवाओगे तो क्या बनेगी, लाइन सेगमेंट। उस लाइन सेगमेंट को क्या बोलते हैं, कोड बोलते हैं। तो आपने बोला सर बोलने से अच्छा आप लिख के बता दो और इजीली हमें समझ में आ जाएगा। तो मैंने बोला कि आपके पास जो है वो क्या है, कि आपके पास जो है वो एक सर्कल है। तो आपने बोला सर ठीक है सर्कल है, समझ गई। अब इस सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर आप कितने पॉइंट से ले लीजिए, 2 पॉइंट से ले लीजिए। तो आपने बोला सर ठीक है। तो आपने बोला सर ये इस सर्कल का सेंटर और ये भी सर्कल का सेंटर और ये भी ये 2 पॉइंट से ले लिए। अब आप इन 2 पॉइंट्स को क्या करवा दीजिए, ज्वाइन। सो आपने बोला सर इन दोनों पॉइंट्स को क्या करवा दिया, ज्वाइन करवा दिया। सो दिस इज द लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या होती है, जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों ही क्या फिक्स होता है। इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों ही फिक्स है और वो है कहां पर, सर्कल की सर्कमफ्रेंस, सर्कल की बाउंड्री पर। और अगर सर्कल की बाउंड्री या सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर आप 2 पॉइंट्स को लेके ज्वाइन करवाते हो तो जो लाइन सेगमेंट तो है ही वो, लेकिन उस लाइन सेगमेंट को एक्चुअल में क्या बोलते हैं, कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोड। तो आपने बोला सर ये कोड बन गई, क्या बन गई, कोड। अब ये जो क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट। सेगमेंट का क्या निकालिए, एरिया। आपने तो सेगमेंट बना दिया। नेक्स्ट AYB शोन इन फिगर। अब आपके पास कुछ फिगर शोन थी, वो नहीं मैंने लिया, नहीं अपन खुद ही ड्रॉ कर रहे हैं। नेक्स्ट इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 21 सेंटीमीटर, की जो सर्कल है उसकी रेडियस क्या है, 21 सेंटीमीटर। तो आपने बोला सर इसको ज्वाइन करवा दीजिए। आप किसको, तो आपने बोला सर इनकी जो ये पॉइंट्स हैं इनको ज्वाइन करवा दीजिए। ये इसकी क्या होगी, रेडियस, ये इसकी क्या होगी, रेडियस, और ये क्या होगी, लाइन सेगमेंट, और वी कैन से कोड। तो आपने बोला सर ये कोड होगी। और ये जो रेडियस है ये क्या है, 21 सेंटीमीटर। सो दिस इज ऑल्सो 21 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि ये इसकी क्या है, रेडियस है। नेक्स्ट आपको बोल रहा है AOB 120 डिग्री। देखो ये बोल रहा था कि जो सेगमेंट है उसका नाम रखा है इन्होंने AYB, तो इसको बोल देते हैं पॉइंट A, इसको बोल देते हैं पॉइंट B, और यहां पर एक पॉइंट ले लेते हैं Y। अब ये क्या हो गया, सेगमेंट AYB। मींस आप A से कहां आ रहे हो, देखो ऐसे आप जो है वो A से कहां आ रहे हो, Y पे, Y से कहां जा रहे हो, B पे, और B से वापस कहां आ रहे हो, इस पे, ऐसे। ये जो आपके पास सेगमेंट है, इस AYB सेगमेंट का आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। फिगर शो है आपको, बट हमने ली नहीं है, हमने खुद से ड्रॉ कर ली। नेक्स्ट एंगल AOB। O इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। इस सर्कल का जो सेंटर है वो है O। सो AOB एंगल कितना है, 120 डिग्री। इज दैट डाउट? नेक्स्ट यूज pi equals to 22/7। I told you many times whenever the angle is less than 180 डिग्री, की जब भी एंगल 180 डिग्री से छोटा हो तो सेक्टर है तो माइनर सेक्टर हो जाएगा, सेगमेंट है तो माइनर सेगमेंट हो जाएगा। बट आई टोल्ड यू इन अ स्पेशल केस, आपको मैंने नोट्स में बहुत इजीली मेंशन करवाया था कि जब भी आपके पास एंगल 120 डिग्री हो सो यू हैव टू अप्लाई ए स्पेसिफिक फॉर्मूला, ताकि आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़े। वो सोचता हूं आपके बारे में, हाँ आपको पता ही नहीं है बस, ठीक है, कि क्या 120 डिग्री क्या लेना है एंगल जब हो, तो आपको एक स्पेसिफिक केस है, बढ़िया फॉर्मूला है, अच्छा फॉर्मूला है, और उसी को लेना है फॉर्मूले को, ठीक है। हाँ, सो यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द सेगमेंट। मींस आपको इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ओके, सो व्हाट वी हैव गिवन, सो यू टोल्ड दैट गिवन दैट, so in this question what we have given, you told that radius is 21 centimeter। so जो radius है वो क्या है, 21 सेंटीमीटर, है ना। and the angle is represented by theta, so we are writing theta equals to 120 degree। आपने बोला सर एंगल 180 से छोटा, इट मींस व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द सेगमेंट, और एंगल 180 से छोटा हो गया, इसका मतलब माइनर सेगमेंट। सो व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, so you have to find out area of the minor segment, area of minor segment, okay, done। so I am writing here solution, so
एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट। तो आपको बताया था कि जब भी एंगल 120 डिग्री आपके पास हो, आपके पास दो ही क्वेश्चन है, एक एग्जांपल है और एक बुक में क्वेश्चन है ना, शायद 7th क्वेश्चन होगा। तो उन दोनों में एक ही फॉर्मूला आप अप्लाई करो, तुरंत आंसर, है ना। सो फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2 कोस थीटा अपॉन 2। ठीक है। आप किसी को मन में डाउट आ रहा होगा, सर हमें तो सर ऐसा कुछ पता है कि सर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। बोले सर हमने तो ये पढ़ा है। हाँ ये सब बताते हैं, लेकिन ये बहुत कम लोग बताते हैं। क्यों? क्योंकि सर ये जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो साइन के आगे क्या आएगा, 120 डिग्री। तो 120 डिग्री की वैल्यू निकालना आपको पता ही नहीं है, और अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स करके आप बोल सकते हो कि सर 120 को अपन 90 + 30 लिख देंगे, साइन 90 कोस में चेंज हो जाएगा, फिर कोस 30 की वैल्यू क्या होगी, ऐसा करके थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, है ना। तो पहले आपके चैप्टर चलता था, एक्सरसाइज 8.3 थी, तो जो 8.3 है वो रिमूव कर दी गई। दैट्स व्हाई आई फाउंड अ शॉर्टकट मेथड। तो मैंने एक शॉर्टकट मेथड निकाला कि आप इसे निकाल सकते हो। क्यों सर, इसमें हमें 120 की वैल्यू नहीं निकालनी पड़ेगी ना। कैसे? 120/2 60, 90 तक तो सीखी है ना। 120/2 60, वो 60 की भी सीखी है ना। बोलो कमेंट में बोल देना। सो on the place of pi we have to write 22/7. तो 22/7 into radius have two powers, it means we have to radius 2 times, है ना। so 21 into 21 into theta is 120 डिग्री। so I told you many times कि थीटा के नीचे क्या, एंगल के नीचे एंगल ही मेंशन करना था कि आपको थोड़ा इजी लगे। माइनस r रेडियस 21 into 21 साइन 120/2 कोस 120/2। कोई दिक्कत है? नहीं है। तो देखो सर 0 से 0 कैंसिल, 12 × 12 12 3 × 36, कोई दिक्कत नहीं। 7 3 × 21, 3 से 3 कैंसिल। ओके, सो 22 into 21 माइनस 21 into 21। सर इसको इससे करोगे, साइन 60 की वैल्यू √3/2 इंटू इसको इससे करोगे 60 cos 60 की वैल्यू, हाँ 1/2। ओके 1/2। कोई डाउट नहीं है। अब आपने बोला सर आप यहां से है ना कुछ कॉमन ले लीजिए। मैंने बोला क्या कॉमन लूं? तो आपने बोला सर अगर आपको दिख रहा हो तो सर यहां पर भी 21 है और यहां पर भी क्या है 21, कॉमन ले लीजिए। ले ले, ठीक है। तो आपने बोला सर 21 कॉमन ले लो, ले लिया। क्या बच गया 22 माइनस, ठीक है 21 √3, 2 2 जा 4। सर बुक में तो ये आंसर ही नहीं है। हाँ बुक में क्या है, आपको एलसीएम वो लेना पड़ेगा। तो आप इन दोनों का क्या ले लीजिए, एलसीएम। सो बाहर क्या था आपके पास 21, एलसीएम क्या लिया आपने 4। तो इसके नीचे क्या है 1, 4 को 1 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 4 आएगा। तो 22 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 88 माइनस 4 को 4 से डिवाइड किया 1, तो 21 को 1 से मल्टीप्लाई किया 21 √3। तो ये क्या है नीचे डिनोमिनेटर में, तो आप इसको नीचे लिख दीजिए। सो 21/4 88 माइनस 21 √3। और जो आपके पास रेडियस थी उसकी यूनिट क्या थी, सॉरी सेंटीमीटर। सो इट मींस सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द एरिया ऑफ द माइनस सेगमेंट व्हिच वाज आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन। सो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, लाइक शेयर कुछ भी करके आप अपना एग्रेशन निकालिए और बताइए कहां दिक्कत है, कहां समझ में नहीं आ रहा। कहीं भी दिक्कत है, आपको कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पूछना है तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो, आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। आप कमेंट कर दीजिए, हम उसी क्वेश्चन को इसी यूट्यूब चैनल पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ओके, और इन फ्यूचर वी आर गोइंग टू ऑल्सो सॉल्व द सैम्पल पेपर्स फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन।
सो आप इस वीडियो को देखो और चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और उनको बताओ, है ना, क्या कि मैथ्स पढ़नी है, किससे भी पढ़ो, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू, बाय।